نیوز وائز میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ. دھاندلی ہوئی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے سینٹ الیکشن میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی تھرڈ پارٹی نہیں کہہ رہی, یہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کہہ رہا, یہ خود جو سیاسی جماعتیں وہ کہہ رہی ہیں. اور وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ جہاں انہیں لگا ہے کہ ان کی مطلوبہ تعداد انہیں مل نہیں سکی سینیٹروں کی, وہاں انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. اے بی سی ڈی ایک دوسرے پہ دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں, یعنی کہ وہ اس چیز کو ویریفائی کر رہی ہیں, کاؤنٹر ویریفیکیشن میں گئی ہے. انہی کے اپنے گھر سے بات آئی ہے کہ ہاں جناب ہمارے ہاں دھاندلی ہوئی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, پیسے دے کے خریدے گئے ہیں, ہمارے ایم پی ایم این اے خریدے گئے ہیں. پیپلز پارٹی خاموش ہے اس ایک موقع پہ کہ جہاں ساری جماعتیں بول رہی ہیں, اور یہ پہلا موقع ہے بڑے عرصے کے بعد کہ جہاں ساری جماعتیں بول رہی ہیں اور پیپلز پارٹی ایک جو بڑی ایک جماعت ہے وہ خاموش ہے. خاموشی کا کیا مطلب لیا جانا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی تو مطلب ہوگا. فی الحال اس وقت تک تو پیپلز پارٹی نے کوئی ہارس ٹریڈنگ کا الزام نہیں لگایا. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ سینٹ کے الیکشن ہو چکے ہیں, اب چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ کیا اس میں بھی ہارس ٹریڈنگ ہوگی؟ اپنا چیئرمین اپنا ڈپٹی چیئرمین لانے کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد چلیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کو تقویت ملتی جا رہی ہے اپنے اس نعرے کی جس نعرے کے ذریعے وہ لوگوں کو ریئلائز کرا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. لوگ ان کے ساتھ ہیں, عوام ان کے ساتھ ہیں, ملک ان کے ساتھ ہے, کچھ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ وہ بار بار کہتے جا رہے ہیں. ظاہر صاحب, یہ ایک پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے کہ میرے خیال میں اس ایک موقع پہ اس کا نہ بولنا, شاید وہ کسی ایسی جگہ پر, کسی ایسی اسمبلی میں, کسی ایسی جگہ پر جہاں پر وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہماری مطلوبہ تعداد میں اتنے بندے آنے چاہیے تھے, وہ نہیں آ سکے. ایسا نہیں ہوا, اس لیے وہ خاموش رہی ہے میرے خیال میں. دیکھیں بات یہ بات صحیح ہے کہ جتنے پی ایم ایل این بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, پیسے خرچ کیے گئے ہیں, عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہ بات صحیح ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی بینیفیشری ہے. اگر کہیں پہ اپسٹ ہوا ہے تو وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے 2 اراکین وہاں سے کے پی سے منتخب ہوئے ہیں, جہاں پہ پیپلز پارٹی کی اپنی سیٹوں کی تعداد صرف 7 تھی. اس کو چھوڑیں, یہ 2 پارٹی کے جو جیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور ان کے کینڈیڈیٹ تھے فیصل سخی جان جو ہے تو وہ جو ہیں وہ سنا کہ 1-2 ووٹوں سے وہ رہ گئے, ورنہ وہ 3 سیٹیں لے جاتے 7 اپنے اراکین کی مدد سے. تو دیکھیں یہ چیز تو دیکھیں سینٹ کے الیکشن میں یہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, اور کے پی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ٹریڈیشنلی. میرا خیال یہ کہ پیپلز پارٹی اس لیے نہیں کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ جو سندھ میں جو نتائج تھے وہ تو وہی تھے جو کہ ہونے چاہیے تھی, جو کہ پریڈکٹیبل تھے. پنجاب میں بھی پریڈکٹیبل تھے ایکسیپٹ فار جو ہے ایک چودھری سرور کے علاوہ. دیکھیں اس میں بھی کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یعنی ان کے جو ہے پی ایم ایل این کی اگر ویسے دیکھا جائے تو ان کی 11 سیٹیں ہی پکی تھیں, 12 وہ لے سکتے تھے. لیکن یہ صحیح ہے کہ جو ہے چودھری سرور کے جو ہے وہ اپنے کانٹیکٹ بہت زیادہ ہیں, وہ پی ایم ایل این میں بھی رہ چکے ہیں, وہاں پہ جو ہے ان کی جو ہے خاصی ایک لحاظ سے جو ہے تعلقات بہت زیادہ ہیں, تو اس لحاظ سے انہوں نے وہ ووٹ لیے ہوں گے. لیکن سب سے بڑا جو ہے میرے خیال ان کو دھچکا جو پی ایم ایل این کو پہنچا ہے پنجاب میں, وہ زبیر گل کی شکست کو. زبیر گل جو ہیں وہاں پی ایم ایل این کے سمجھے جاتے ہیں اس کے برطانیہ میں ان کے صدر تھے, اور وہ جو ہے نواز شریف صاحب سے بہت زیادہ قریب تھے. ایک لحاظ سے کہا جائے کہ ان کی ایک پرسنل ان کی چوائس یہ تھی کہ زبیر گل کو ٹکٹ دیا جائے, اور وہ زبیر گل ہار گئے. تو یہ جو ہے میرے خیال یہ کہ ان کو سب سے بڑا دھچکا یہی پہنچا ہے, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی نہ کوئی جو ہے ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. بٹ زاہد صاحب بات تو پھر وہی آتی ہے نا کہ اگر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور پیسے ایکسچینج ہوئے ہیں تو وہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ہر دفعے ہوتا ہے, ہر دفعے یہی شور مچتا ہے. پچھلی دفعے بھی یہی شور مچا تھا. پچھلی دفعے بلکہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نے کے پی میں تو بیہائنڈ دا سینز انہوں نے سارا مینیج کیا تھا تاکہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو. اس دفعے شاید تعلقات اتنے خراب تھے کہ وہ کر نہیں پائے. پی 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 بھی میرے خیال میں جس زمانے میں بابر اعوان الیکٹ ہوئے تھے پنجاب سے, تو ان کا ایک بہت سینئر ورکر تھا گل, وہ نہیں الیکٹ ہوئے تھے, اور ان کی جگہ کامل علی آغا الیکٹ ہو گئے تھے, جس پہ پی 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 میں بھی شور مچا تھا کہ جی یہ کیا ہو گیا. اور وہ یہ بھی کنسپیریسی تھیوری چلی تھی کہ پی 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 خود
कामिल अली आगा को उन्होंने बिहाइंड द सीन्स मदद की है। सो ये तो हर दफ़े होता है। पॉइंट ये है कि आपने इसके बारे में करना क्या है। क्या ये मसला हल हो जाता है बाय बिहाइंड द सीन मैनेजमेंट ईच टाइम, या जो ओथ टेकिंग आप ले लेते हैं उससे तो मसला नहीं हल हो रहा ना। तो मे बी समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट द वे द सेनेटर्स आर इलेक्टेड। लेकिन सबसे मुज़ाहिका खेज चीज़ ये है कि दोनों इमरान खान और PMLN सबसे ज़्यादा शोर मचा रही है कि जो है वहाँ पे धांधली हुई है। लेकिन ज़रा ये पूछें कि अगर धांधली हुई है या जो है हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या बिके हैं, तो उनके खुद MPs बिके हैं ना। अब तो वही कि आप MPs को तो बजाय इसके किसी और को इल्ज़ाम लगाएं, ज़रा उनसे भी आप ज़रा पूछें कि पार्टी के अंदर रहते हुए वो इस तरह से कैसे हुआ। जैसे कहा जा रहा है KP में 17 वोट इधर से उधर हो गए। अब 17 वोट जो इधर से उधर हुए हैं, पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक लिहाज से सोचने का मकाम है कि ये कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है पार्टी के खिलाफ वोट दिए। फिर एक और सवाल या निशान भी बन के आता है, वो ये है कि क्या पार्टी के वो अराकीन खुश नहीं थे जिनको टिकट दिया गया। ये भी होता है अक्सर, ये भी होता तो है। जैसे अब गुल साहब के केस में ये बात की जा रही है, केस में ये बात की जा सकती है। दूसरी बात है समीउल हक को उन्होंने बैक किया था, इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे समीउल हक, लेकिन ये है कि उनको PTI की मदद हासिल थी। उनको सिर्फ 3 मानने को तैयार नहीं थे, मगर सबको मालूम था कि 3 वोट सिर्फ पड़े। तो एक लिहाज से दोनों चीज़ हो सकती है, सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ और भी जो है, जो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात होते हैं, जो नाखुश होते हैं, उनका भी एक असर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी होता है अक्सर। अब जैसे इसकी थी जो ये पीपल्स पार्टी के जो दूसरे जीते हैं तंगी, पूरा पहला नाम दिलावर तंगी, तो वो जो है अगर आप देखें तो वो कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है जैसे KP में आम तौर पे ख़रीदे जाते हैं। वो जीत गए हैं, तो इसका मतलब कुछ उसमें ये भी हो सकता है कि जहाँ पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात मौजूद होंगे। नहीं, और वैसे तो फिर वही बात करनी चाहिए कि PPP की जनरली सिलेक्शन कैंडिडेट्स की बेहतर होती है। जो आप तंगी साहब की बात करें, और जो ज़ुबैर गुल थे उसके बारे में आई थिंक पहले से ही पार्टी के अंदर काफ़ी सवालात उठाए गए थे, और समीउल हक के बारे में भी आई थिंक PTI के अंदर ऐसी किस्म के इश्यूज़ थे। सो दिस कुड बी एन इशू, बट फिर इशू वही आ जाता है ना कि आप इसके बारे में कर क्या रहे हैं। इलेक्शन से 3 महीने पहले अगर आपको वो 17 लोग मिल भी जाते हैं और PTI को ये मालूम भी हो जाता है कि उन्होंने पैसे लिए थे, तो वो क्या करेंगे? क्या वो सचमुच कैन दे टेक द रिस्क कि वो अगली दफ़े उनको टिकट ना दें, कि वो उनके साथ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कर सके, कंसिडरिंग कि जो उनके MNAs बैठे हुए हैं 2-3 जिन्होंने कितना पब्लिकली डिफाई किया, उसके बारे में तो आज तक PTI ने कुछ किया नहीं है। बिल्कुल वही बात वही आती है, दोनों चीज़ का है। एक तो ठीक है, ये जो है मैं समझता हूँ कि पैसे का चलना मुमकिन है, हो रहा है, जो खुद ही ये तमाम जो है पार्टियाँ कह रही हैं। लेकिन एक और पार्टी को एक और भी सोचना चाहिए कि जब आप कैंडिडेट की चॉइस करते हैं तो क्या उनको आप डेमोक्रेटिकली उनको नॉमिनेट करते हैं, अपने पार्टी से मशवरा करते हैं, या जो है जो कायद होते हैं वही तय कर लेते हैं? इसका भी तो एक चीज़ ख्याल रखना। डेमोक्रेटिकली तो कोई भी चीज़ नहीं होती ना। कौन से कैंडिडेट्स कौन वो करते हैं डेमोक्रेटिकली? कोई वो अगर बोर्ड बनाते भी हैं तो मेरे ख्याल में वो कागज़ों में ही बनता है, क्योंकि सिर्फ अखबार में खबर ही आती है उसकी कि वो बोर्ड बन गया है और उधर फैसला हुआ है। फैसला तो अलग से हो जाता है। अब इसहाक डार की आप नॉमिनेशन को ले लें, बिल्कुल वो मतलब कि उसके ऊपर अब क्या कह सके कि वो एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस चल रहा है, वो मुल्क में वापस नहीं आए और आपने उनको फिर सेनेटर बना दिया। अगले दिन जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होगा तो कोई हमें गारंटी दे सकता है कि इसहाक डार साहब मुल्क में वापस भी आएंगे उस सेनेट में बैठने के लिए? या फिर कल अगर कोई रिट पिटीशन दाखिल करेगा या जो केस है जब फैसला आएगा तो उसके लेकिन उसको छोड़ें। आप तो कह रही हैं कि उनको जो टिकट कैसे दे दिया, वो तो फेडरल मिनिस्टर हैं, ये आपको याद है? जी, आप ये हर दफे हमें याद करवाते रहते हैं कि वो फेडरल मिनिस्टर हैं और वो अभी तक कैबिनेट लेकिन एक पार्टी बहुत खुश है तमाम नताइज से, PPP, पीपल्स पार्टी। देखिए पीपल्स पार्टी की जो है बड़ी अच्छी वो चीज़ हुई है। पीपल्स पार्टी ने अपने सूबे में वो ठीक है, उसके जो MQM की जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है, तकसीम हुआ, उसका एक असर था, लेकिन पूरी की पूरी जो है 10 सीटें उन्होंने ले गए। उनका हक बनता था शायद 8 सीटों से ज़्यादा नहीं था या 7 बट वहाँ तो खैर यू हैव टू से कि सारा क्रेडिट एक्स्ट्रा सीट्स का MQM को जाता है, लेकिन यू कांट से कि उधर जरदारी साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। वहाँ तो सारी मेहनत फारूक सत्तार साहब और MQM। आप ये बताइए कि जो KP में जो उन्होंने अपसेट किया वो उसका क्रेडिट किसको जाता है? वो तो जरदारी साहब को देना इतने ताकतवर है कि वो 2 लोगों को जितवा सकते हैं। देखिए अब वही तो बात है ना, और अब वो ज्यादा जैसे लोग कह रहे हैं वो PPP का एकदम रिवाइवल हो गया कि दिस इज व्हाट आसिफ अली जरदारी वेरी गुड एट, जोड़ तोड़ और इस तरह की चीज। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स उनसे हो ना हो, वो अपने एलिमेंट में होते हैं जब इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। एक और जो चीज उन्होंने कर डाली है
وہ 6 اراکین منتخب ہوئے ہیں بلوچستان سے، اور 6 اراکین وہی ہیں جو کہ جن کو جو ہے جو بغاوت کے بعد نئی حکومت آئی ہے اس کی حمایت حاصل ہے انڈیپینڈنٹ، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے، یا جو ہے کم از کم جو ہے ان کے اشارے ایسے ملے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ نئی حکومت بنی تھی بلوچستان کی تو سب سے پہلا کام یہ زرداری صاحب نے ان کو سب کو کھانے پہ بلایا تھا۔ نہیں ابھی بھی کہتے ہیں فیصل کریم کنڈی اور قیوم سمرو جو تھے they were in کوئٹہ اوور نائٹ آفٹر دی الیکشن ان سے بات چیت کرنے کے لیے۔ پی ٹی آئی ابھی اناؤنسمنٹس ہی کر رہی ہے کہ ہم جائیں گے، ہم ان سے ملیں گے، ہم کچھ کریں گے، بٹ وہ تو جا کے میرے خیال میں مل بھی آئے ہیں۔ دیکھیں ایک اور بات بھی ہوئی ہے جو سینٹ کے الیکشن میں ہم نے یہ ساری چیزیں کر دی، ہارس ٹریڈنگ کی بات بھی ہو گئی، لیکن ایک اور بھی جو ہے ایک پازیٹیو نوٹ پہ کہ جو ہے سینٹ کے الیکشن ہو گئے، سینٹ سے آج سے 3 مہینے پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 9 فروری کو جو ہے ڈیزالو ہو جائے گی اسمبلی، کوئی سینٹ کے الیکشن، I thought it was New Year's Eve، اس سے پہلے ہونا تھا، وہ تو مارشل لاء لگنا تھا۔ اچھا وہ مارشل لاء لگنا تھا، اچھا وہ اس وقت گزر گیا، اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کچھ شرطیں بھی لگائی ہوئی تھیں، کچھ پیسے بھی دینے تھے، آپ نے بھی لینے تھے؟ نہیں میں نے نہیں لینے تھے، کسی اور نے لینے تھے، بٹ اس میں جو ہے شرط تو لگی ہوئی تھی اس میں، لیکن یہ تھا کہ آپ کو یاد ہے بہت بڑے بڑے نامہ نگار، بہت بڑے بڑے کالم نواز کہتے تھے کہ 9 فروری سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تو ایک اچھی خوشائند بات ہے کہ باوجود اس کے سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جنرل الیکشن بھی وقت پہ ہوں گے، اور کوئی میرے خیال میں اب تو میجر اپسیٹ اس سکیڈول کے اندر نہیں ہو سکتا۔ پی ایم ایل این خود جو مرضی ڈیٹ رکھے یا نہیں رکھے، بٹ دیر کین بی نو ایکسٹرنل اپسیٹ انٹو دس ہول تھنگ، اینڈ ہوپ ناظرین ہم بات کریں گے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ان کا بھی انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے سیاسی جماعتوں کی کہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، تو ابھی تو دو بڑے آفیسز ہیں، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، وہاں بھی 2 بڑی جماعتیں چاہ رہی ہیں کہ ان کے ہی کینڈیڈیٹ کامیاب ہوں، تو اس میں بھی وہی ہو سکتا ہے جس کا رونا الیکشن کے اوپر روایا گیا، سینٹ الیکشن کے اوپر۔ اس پہ بات ہوگی لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جہاں پیسہ چلا ہے، جس کا ایک بھی بندہ کسی صوبے میں نہ ہو، تو وہاں سینٹ کے لیے اپنے امیدوار کھڑا کر دیں، یہیں سے پتہ لگتا ہے انہوں نے دھاندلی کی ہے یا نہیں کی۔ یہ الیکشن نہیں ہوئے، یہ پیسہ چلا ہے، 4 کروڑ روپے کی ریٹ لگی ہے ایک ایم پی کا ضمیر خریدنے کی۔ کیا یہ میری ذمہ داری ہے پتہ چلوانی؟ ہماری جمہوریت کو جو نقصان پہنچا ہے پبلک کی نظر میں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ایک کے پی کے میں بلوچستان کی بات نہیں کرتا، ایک ووٹ 5 کروڑ روپے میں ملا ہے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ سیاسی رہنما کہہ رہے ہیں کوئی 4 کروڑ کوئی 5 کروڑ۔ اب یہ 4 کروڑ کا کیسے پتہ چلا ہوگا کہ 4 کروڑ کی آفر ہوئی ہے؟ یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ اس ارکان کو اس رکن قومی اسمبلی کو ہوئی ہے یا پروونشل اسمبلی کو ہوئی ہے جس نے نہ کر دی اور اس نے پارٹی رہنما کو بتا دیا ہو کہ جناب مجھے 4 کروڑ کی آواز آئی ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو بھائی آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ مجھے کہاں سے آواز آئی تھی 4 کروڑ کی 5 کروڑ کی، آپ کو سرا مل سکتا ہے، کلیو مل سکتا ہے، آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں اگر مجھے موبائل کے ذریعے رابطہ کیا گیا ہے یا کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے رابطہ کیا گیا ہے یا ڈائریکٹ رابطہ کیا گیا ہے تو میں تو پارٹی کا وفادار ہوں۔ اگر میں نے پارٹی کی وفاداری یہ کہہ کے نبھا دی ہے کہ میں ٹوٹا ہی نہیں، میں نے پارٹی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے، تو میں اپنے پارٹی رہنماؤں کی مدد کر سکتا ہوں کہ جناب مجھے کون بندہ تھا جو اپروچ کر رہا تھا۔ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے، میچ فکسنگ ہوتی ہے۔ میچ فکسنگ میں ہوتا کیا ہے کہ جہاں کھلاڑی رہ رہے ہوتے ہیں ان کی ایک سرویلنس، ایک مانیٹرنگ ہوتی ہے، کون بندہ ان سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے، آؤٹ سائڈر۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ آپ دیکھیں، اگر میں جا کے کہتا ہوں عمران خان کو کہ جناب یہ 4 کروڑ کی 5 کروڑ کی جو فگر آئی ہے، یہ آخر کسی نے تو کہا ہوگا نا کہ 4 کروڑ کی آفر آئی ہے، 5 کروڑ کی آفر آئی ہے، تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو پکڑ لو کہ یار تیری مہربانی، تو نے وفاداری تو نبھائی، تو نے پارٹی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا۔ 4 کروڑ عمران خان نے کہا یا شیخ رشید؟ ایک نے 4 کروڑ کہا، ایک نے 5 کروڑ کہا۔ تو انہوں نے تو 35 پنکچر بھی کہا تھا۔ ڈو وی ریلی نیڈ ٹو ڈسکس ان کے کہ یہ کیا میں انہی سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہو تو ہمارا تو پوچھنا بنتا ہی نہیں، پھر تو ہم پوچھیں گے، وہ فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ تو الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ ان کے پاس کئی دفعہ کوئی وہ پروف نہیں ہوتا، کوئی الزام لگا، سارے الزام لگا رہے ہیں، لیکن وہ ایک فگر بتا رہے ہیں 4 کروڑ 5 کروڑ۔ تو کہہ رہی ہوں نا، انہوں نے تو بہت
से सारे पता और फिगर्स भी बताए थे ना, इन्होंने 35 पंक्चर की बात की थी। लेट्स टॉक विद द सेनेट चेयरमैन। असल बात वही है, 35 पंचर कंफ्यूजन। ये तो अब इलेक्शन ये फाफन वाले 35 वो थे पंचर। मैं कह रहा हूँ ये हालांकि वो बात कुछ और थी। इलेक्शन हो गए हैं, हमने इस पे बहुत बात भी कर ली थी। असल बात ये है कि ये गुत्थी सुलझाते रहे कि 5 करोड़ बिके या 4 करोड़, लेकिन असल जो है मामला जो अब आ रहा है, जब सेनेट के और डिप्टी सेनेट के जो चेयरमैन जो है वो कौन बनता है। असल तो मसला बार्गेनिंग और सियासत में जो है वो तो असल में सियासी जो एक लिहाज से जिसको कहते हैं गेम, वो तो अब शुरू हुआ है। और इस वक्त देखना ये है कि कौन बन पाता है कौन नहीं बन पाता है, क्योंकि एक क्रिटिकल है। थोड़ा सा मैं बता दूं, आप नंबर्स की बात कर रहे हैं। देखें इस वक्त जो है अगर देखा जाए नंबर कैसे, तो इस वक्त जो है लगता ये है कि PMLN जो है लार्जेस्ट पार्टी है बन के आई है। उसकी 33 सीटें हैं यहाँ पे, और 33 के बाद एक और भी उनको शामिल हुआ है, 34 हो गई हैं सीटें। बावजूद इसके कि जो है उनके कैंडिडेट जो हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। तो एक लिहाज से देखा जाए जो जीतने के लिए सेनेट के इलेक्शन के लिए चेयरमैन के लिए, तो उनको सिर्फ चाहिए 53 वोट, जिसका मतलब ये हुआ कि PMLN को इस वक्त चाहिए तकरीबन 20 वोट्स और चाहिए कि वो जीत सकें। तो अगर सिर्फ फिगर पे चले जाएं तो इनको एडवांटेज साफ नज़र आता है कि इसके अलावा जो इनके जो हलीफ हैं या कोalition पार्टनर हैं, जिसमें नेशनल पार्टी बलूचिस्तान की है, जिसमें जो है मिली पार्टी जो है जो अचकज़ई साहब की, वो जो है वो उनमें, और तीसरी JUI है। तो अगर उसकी फिगर हम ले लें तो इस वक्त नेशनल पार्टी की 5 सीटें मौजूद हैं इस वक्त, और दूसरी जो हलीफ पार्टी है इनकी जो है अचकज़ई साहब की पार्टी, उसके भी 5 मेंबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो तीसरी पार्टी जो वो कोalition के JUI भी जो है वह मरकज़ में इनके पार्टनर है, तो उसको भी मिला लें तो 4 मिल के जाते हैं, तो इनके बन जाते हैं 10 और 4 14, और इसमें जो है 14 में अगर आप मिला लें तो तकरीबन इनके 47 बन जाते हैं, जो कि आप कह सकते हैं सिक्योर। लेकिन गेम ख़त्म नहीं हुआ है। असल गेम जो है इस वक्त जो है वो शातिर जो है वो कह सकते हैं कि जरदारी साहब के हाथ में बहुत सारे कार्ड अभी भी मौजूद हैं। शायद साहब ये जरा आपकी जो थियरी है ना, बट खैर आप बोलें, मैं बाद में नहीं, अच्छा खाली मैं नंबर पे चलाया तो फिर आपके कमेंट दे दें। देखिए इस वक्त जो है ये अगर पीपल्स पार्टी के 20 अरकान हैं इनके अपनी पार्टी के, उसके बाद जो है बलूचिस्तान से जो 8 जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, वो जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं वो PMLN के बागी हैं और आज़ाद खड़े हुए थे। 6 तो अभी जीते हैं, 2 पहले से मौजूद थे। इनका पीपल्स पार्टी से खासा एक करीब लिंक नज़र आता है। तो 8 वो हो गए, जिसमें जो मैं कह रहा हूँ उस अपोजिट कैंप की बात करें, इसको पीपल्स पार्टी के नाम भी कहें। और उसके बाद अगर आप 12 जो हैं वो उसके हैं PTI के। तो इस वक्त जो है जो अपोजिट कैंप हैं उनके पास सॉलिड हैं 40 एंटी नवाज कैंप। अब जो रह जाता है जो पूरा गेम, अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी कैंडिडेट खड़ा करते हैं जिसमें PTI को भी मंजूर हो और पीपल्स पार्टी को भी मंजूर हो, कोई कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट हो जाए, तो उसमें फिर उसका सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो है इनको मेरे ख्याल में अब्दुल कद्दूस बजंजो की जरूरत है। हाँ, वो शायद किस तरह का आ जाए, मिल जाएगा, जिसकी अपनी स्ट्रेंथ ना हो, जिसकी पार्टी की स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन आपका कंसेंसस कैंडिडेट बन के वो सरप्राइज दे सकते हैं। तो गेम जो चेंज यानी कि अगर एक बलोच कैंडिडेट चेयरमैन के लिए खड़ा हो जाए तो हमारा नहीं, हम एक एग्जांपल दे देंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि क्या PTI और PPP इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके अंदर या तो वही बात है कि या तो हम ये कहें कि कंसेंसस कैंडिडेट इस किस्म का होगा, उसकी इतनी कुछ सिंबॉलिक प्रेजेंस होगी कि PTI विल बी विलिंग टू पुट असाइड इट्स डिफरेंसेस, उसकी जो सारी नजरियात हैं, और वो PPP के साथ मैंने वही कहा कि तीसरी एक जमात जिसकी इतनी फॉलोइंग नहीं है, जिसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो कहीं पे जाके कंसेंसस उस पे आ जाता है। तीसरी जमात तो कोई नहीं है ना, वो तो फिर बलूचिस्तान का कोई होगा कि जी छोटे सूबे का कोई कैंडिडेट है तो एक और बात भी आती है, सिराजुल हक साहब भी तो हैं। सिराजुल हक साहब पे PPP तो फिर बिल्कुल भी नहीं अग्री करेगी ना। अच्छा उसके आगे चलें, उसमें इसमें जो है उसको मैं खाली इस पर बात आ रही है आज़ाद किसी को खड़ा। अच्छा सॉरी, इसमें मैं सिर्फ एक ये बात करना चाहूँगी कि वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ क्योंकि जितने भी नाम PMLN की तरफ से आ रहे हैं वो सब पंजाब से हैं, और PMLN को कोई जरा भी परवाह नहीं है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी, पार्टी का हेड भी, पावर बेस पंजाब है, स्पीकर भी, मतलब कि जो पोस्ट होती है, सदर एक सदर कराची के हैं, एक सदर कराची, वो भूल जाते हैं वो, क्योंकि किसी को भी नहीं याद रहते। हाँ सॉरी आप ले लें। चले फिर असल बात रह गई है, लेकिन चले आगे कर लेंगे। वो जो रह गई है बात वो ब्रेक के बाद कर दीजिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात होगी।
वोट जो है उसकी ये इज्जत, हम वोट दे के एक वज़ीर-ए-आज़म बनाएं और उसको वो जूती की नोक पे जो है वो निकाल के बाहर कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि जो मैं अब मूड देख रहा हूँ पाकिस्तान के अवाम का, वो अब ये सिक्का शाही जो है बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना चाहिए। ये देखें, लोग वोट के जरिए तब्दीली चाहते हैं। लोग ये नहीं चाहते कि फैसलों के जरिए मकबूल की आदत को बाहर निकालने की कोशिश की जाए। वेलकम बैक टू द शो। ज़ाहिर साहब आपकी कोई बात रह गई थी जो आप ब्रेक पे जा। हाँ, बस वही हम बात कर रहे थे कि अब इलेक्शन की जो है सेनेट के इलेक्शन की, तो वही था कि अब देखना ये है कि आज़ाद कैंडिडेट खड़ा होता है। एक सिर्फ है नवाज शरीफ साहब को इस वक्त जितवा सकते हैं, वो जो है इमरान खान। अगर फर्स्ट ये जो है इस वक्त 12 नवाज वोट को कंसोलिडेट नहीं होते हैं तो फिर जो है फिर PMLN को कोई रोक नहीं सकता है। तो देखना ये है कि अब क्या होता है। इमरान खान साहब जो हैं वो कितने अपनी नफरत को कंट्रोल कर सकते हैं या स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, वरना तो ये है कि ऑब्वियसली नोबडी कैन स्टॉप द PMLN, क्योंकि उनके लिए वोट्स इवेंचुअली इकट्ठे कर ही लेंगे वो। वैसे हमारा ये जो सेगमेंट था ये ब्रेक के बाद था, ये था उसका कि नवाज शरीफ साहब को जो स्पेस मिली है उस स्पेस का पूरा फ़ायदा उठाते हुए बात को आगे लेके जा रहे हैं। ऊपर से साथ साथ ये जो स्पेस मिलने के साथ उनको जो कामयाबी मिलती जा रही है, बाई इलेक्शन हो, सेनेट के इलेक्शन हो, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में जाके वो अवामी हमायत लेने में किस हद तक कामयाब हुए हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन अवामी हमायत आ रही है, राय आमा हमवार हो रही है उनके हक़ में। देखिए, एक चीज़ और आती है कि अभी आप जो सुना रहे थे उनको कि जो है कि अवाम मुंतखब करती है वज़ीर-ए-आज़म को और फिर ये है कि 5 लोग उनको घर भेज देते हैं। ये एक वाक़या शायद 2012 में भी हुआ था, एक वाक़या बहुत से ऐसे। लेकिन उसको उस वक्त नवाज शरीफ साहब की पोजीशन क्या थी? नवाज शरीफ साहब तो स्टार्टेड टू रिमाइंड मी ऑफ मंगल पांडे, 1857 की रेवोल्यूशन है जिसको हम बहुत तारीख में बड़ी चीज़ समझते हैं, बट इवेंचुअली इतना कुछ निकला कोई नहीं था कि वो रेवोल्यूशन हुई नहीं थी, बस बातों तक ही रही थी। इनका भी कुछ मुझे लगता है ऐसा ही हाल असल में ये हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब को, PML नवाज को एक आदत पड़ गई बड़ी पुरानी सी कि अगर तो दूसरों के साथ हो रहा है सब कुछ तो वो कह रहे हैं कि जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन यूं ही वही कुछ उनके साथ होना शुरू हो जाए तो वो कहते हैं ये तो जमहूरियत के खिलाफ बात हो गई। अब वो अपनी इकाई को रख के वो फैसला करते हैं, वो सारी इकाइयों को, सियासी मैदान की सारी इकाइयों को या सियासत या जमहूरियत की सारी इकाइयों को साथ रख के नहीं सोचते, वो सिर्फ एक इकाई उनको नज़र आती है, एक बेसिक यूनिट नज़र आता है जो मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी ज़ात है या PML नवाज है, उसी के इर्द गिर्द ये जुल्म और ज़्यादती और ये वो सारा कुछ होता है। अगर दूसरी तरफ में वो पार्टी को भी नहीं देखते, वो सिर्फ अपने आप को ही देखते हैं, पार्टी देखते हैं कि पार्टी उन्हीं की है। हाँ, मतलब वो ये नहीं समझते कि पार्टी का इंटरेस्ट शायद उनके इंटरेस्ट से फर्क हो, वो समझते हैं कि ये भी घर की दुकान की तरह ही है ना, कि अगर मुझे कुछ हो गया, वो तो है ना, नहीं उसमें और भी लोग हैं, वो उसमें और भी लोग हैं और हो सकता है कि उनके इंटरेस्ट जो हो फर्क हो। वो हुकूमत चला रहे हैं, वो जो हुकूमत चला रहे हैं इस वक्त वो है ना, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, SN इकबाल हैं, ख्वाजा आसाद रफीक हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, वो ख्वाजा आसिफ भी है, वो फॉरेन पॉलिसी में जो भी गन मारे या ना हमारे, ये मिलके सारे मिलके इनका इंटरेस्ट, मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरे ख्याल में इन सब का इंटरेस्ट अब नवाज शरीफ के इंटरेस्ट से थोड़ा फर्क है। कोई फर्क नहीं है, वो आप मत माने, बट ये मेरा व्यू है कि मैं आपको मनवाने के उसमें बैठा हूँ कि आप मुझे कह रहे हैं आप ना माने, मैं भी ये नहीं कह रहा कि आप ना माने, ख्याल है लेकिन कि उनका फर्क है और वो बेचारे जो है वो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, वो मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम चले। ऐन मंशा के मुताबिक ये मुल्क चल रहा है, ऐन मंशा के मुताबिक वो जो लोग बैठे चलाने वाले हैं उनकी अगर ऐन मंशा के मुताबिक सारा काम चल रहा है तो फिर उनको शिकायत क्या है? ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि मैं इनकलाब लेके आऊंगा, तो जो है वो अगर सारी चीजें इनके मंशा के मुताबिक चल रही है तो फिर इनकलाब किसके खिलाफ होगा? तभी तो मंगल पांडे कहा है ना, इनकलाब नहीं आएगा। तो वही वो खुद वज़ीर आज़म नहीं है, फर्क सिर्फ इतना हुआ है, उनको हुकूमत के साथ कोई मसला नहीं है, उसने कहा इसका सरबराह जो है, यही तो हम कह रहे हैं ना कि फिर इंटरेस्ट फर्क हो गया ना, वो वज़ीर आज़म नहीं है बल्कि बाकी सब अभी भी हुकूमत कर रहे हैं, तो फर्क हो गया नवाज शरीफ में और PML। अगर आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ आज़म नहीं रहे और ये उनका हुक्म नहीं मारने होंगे तो फिर मैं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि ये जो है 5 लोग जो हैं वो गिरा देते हुकूमत, तो बाकी लोग
जो है इनकी बात की तायद नहीं करते हैं? क्या नहीं कर रहे ना, वो तो हुकूमत में बैठे हुए हैं बेचारे, वो हुकूमत चलाने की कोशिश वो कभी कभी इन सबको जो वो उन्होंने अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होती है, बट इतना ही शौक होता है तो फिर छोड़ देते ना हुकूमत, जाके नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो जाते। लेकिन आप नवाज शरीफ साहब के हक में बात ही ना जाती हो कि यार मुझे तो निकाला है, आप क्यों निकले हैं? लेकिन आप क्यों निकले हैं? आप क्यों निकले हैं? क्या ये जो आप जो हुकूमती अरकान की बात कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे तो निकाला गया था, आप क्यों निकल रहे हैं हुकूमत में से? आप रहे जनाब। अरे वो तो रह रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि हम रहें, और वो चाहते हैं कि वो नवाज शरीफ भी चाहते हैं। अच्छा आप बताइए, नवाज शरीफ साहब तो पता नहीं क्या चाहते हैं, उनके तो कुछ क्लियर नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। नहीं वो बस देखिए ये बात नहीं है, बट नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है, ये हम कितनी दफे बात कर चुके हैं कि वो एक तरफ कहते हैं कि मुल्क का हशर हो गया है जब से मैं निकला हूँ। भाई वो मुल्क तो उन्हीं के कॉलीग्स चला रहे हैं ना। आपके ख्याल आप बिल्कुल रद्द करती हैं, कोई आदमी जो है कभी बिल्कुल एक यानी उसमें बाहर आता है, वो कहता है कि मैं हर चीज को तब्दील कर दूं, तो ये अच्छी बात होती है? एक और ब्रेक का कहा जा रहा है जो है वो इनकलाब मंगल पांडे बन गए हैं, वो इनकलाब आएगा नहीं जिसके लिए वो निकले हुए हैं। आप मान ही नहीं रहे मेरी बात को। वो 3-4 दफा इस तरह का इनकलाब ले आए हैं, इससे पहले जब भी शोर मचा, तीसरी दफा वो वज़ीर आज़म बने हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटी सी इनकलाब से पहले ये जो इनकलाब, जिस तरह का इनकलाब आपकी मर्जी की जो चीज़ होगी वो आपका इनकलाब होगा, इनकी मर्जी की चीज़ होगी वो इनका इनकलाब होगा, मेरी मर्जी की चीज़ होगी वो इनका। अपनी पसंद की चीज़ों को हमने इनकलाब का नाम दे दिया। आप वो किताबी बातों में चले जाते हैं। किताब में जो इनकलाब को डिफाइन किया गया, शायद ये उस इनकलाब की बात कर रहे हैं, कोई भी किसी ने भी आज तक नहीं की। आज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तमीना हमारी सेक्रेटरी खारजा जो है वो अमेरिका की, तमीना जंजुआ अमेरिका यात्रा के लिए गई हैं, इस पे बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ज़ाहिर साहब ये तमीना जंजुआ अमेरिका जा रही हैं और मुलाकातें मुतवक्का हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, आप बोलें, हम सुनेंगे। बोलेंगे। अरे मतलब ये है कि ये कोई बहुत अहम दौरा नहीं है, एक रूटीन की इंटरेक्शन है। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, चलें आप। अच्छा ठीक है, बोले इन्होंने उनकी तरफ से जो भी है आप अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा था कि उसमें कोई बहुत अहम चीज़ नहीं है, ये रूटीन की मुलाकात है और लोअर लेवल की है। मतलब ये तो फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वो अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन ये भी नहीं कहना चाहिए कि जो है बिल्कुल ही हमारे कोई रप्चर हो गया है, बिल्कुल ताल्लुकात मुनक़ता हो जा रहे हैं, दोनों में नहीं है। दोनों ममालिक के बावजूद उसके कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, ख़राब तर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है एक बहुत मेल मिलाप रहना चाहिए, मेल मिलाप कन्वर्जेंस और बहुत सारे इंटरेस्ट भी मिलते हैं हमारे, बावजूद इसके कि हमारे इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं, लेकिन इस इलाके में बहुत सारे जो है कन्वर्जेंस भी हमारी बन के आती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो है अगर डिवोर्स तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये था कि स्ट्रेंजमेंट रहेगी और सेपरेशन किस तरह से सेपरेशन भी मुश्किल है अभी फिलहाल। तो फिर अगर सेपरेशन भी मुमकिन नहीं है, डिवोर्स भी मुमकिन नहीं है, तो फिर वो आप मुझे बताएं ना वो क्या रिलेशन का श्रिंक के पास होती है ना, when the troubled couple starts to go to see a shrink, ये वो वाली विजिट्स हैं। मतलब क्या कि तुम अपने कमरे में, हम अपने कमरे में। मैं यही कहना चाह रहा था कि बेडरूम्स अलग अलग हो गए हैं, काफ़ी जो है लड़ाई भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन ये था कि जो है लफाजी भी होती है, एक दूसरे को गालियाँ भी शायद दे देते हैं, लेकिन घर अभी शेयर हो रहा है। Nobody has moved out yet, और ना ही होने की उम्मीद है, क्योंकि एक और मसला भी है, वो अफगानिस्तान है, जो दोनों के दरमियान जो एक कॉमन चीज़ है। बच्चों के इंटरेस्ट में मियाँ बीवी इकट्ठे रहेंगे। बिल्कुल। और बच्चे का स्टेटस अफगानिस्तान को देना अभी जरा कबल नहीं, वो उसको मैं इस तरह से नहीं कहूँगा क्योंकि घर में नहीं रह रहा। हाँ, असल बात यह है कि ये जो है अफगानिस्तान के मसले पे अभी भी जो है बहुत एक जो है हल होना है। इसको हल होने से मतलब ये है कि वहाँ पे जो है एक जो स्टेबिलिटी आनी, 17 साल की जंग है, वो ख़त्म भी होनी है, उसको जो है लाइमतनाही नहीं चल सकती। हालांकि देखने में जो अमेरिका की पॉलिसी जो लगती है तो ऐसा लगता है कि इसमें कहीं पे इंतहा नज़र नहीं आती। तो जाहिर साहब फिर तो वही बात है ना कि अफगानिस्तान इज़ द इशू, तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर दोबारा प्रेशर आएगा हक्कानीज़ का, स्पेशली अगर जून में FATF की मीटिंग होनी है दोबारा और हमें ग्रे लिस्ट पे डालना है,
تو اس کانٹیکسٹ کے اندر شاید حقانیز کے حوالے سے ہمارے اوپر زیادہ پریشر ڈالا جائے گا. حقانی دیکھیں اب بہت عجیب سے سگنلز بھی آ رہے ہیں جو ہم پچھلے وہی بات کر چکے تھے کہ ایک طرف تو یہ بات حقانی کی ہے لیکن جو ہے جو سینٹ کام کے چیف ہیں ان کی طرف سے کچھ اور آیا کہ ہماری کچھ جو ہے کوآپریشن بھی بڑھ رہی ہے, یہ بھی تھا, دونوں چیز ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ پریشر ٹاک فائٹ پریشر تو کم ہونے نہیں جا رہا ہے. ہاں پریشر کم نہیں. اور اس میں یہ کہنا کہ جو ہے ایک ملاقاتیں تو ہوتی ہیں اور جہاں پہ بہت زیادہ جن کے اختلافات ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ملاقات ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے جب کولڈ وار کے زمانے میں جو ہے یہ سوویت یونین اور امریکہ کی جو ہے وہ سمٹ کانفرنس باضابطگی سے ہوتی تھی. دیکھیں خیر اس میں ہمارے وہ نوعیت نہیں, یہ نہیں ہے. اور یہ ایک اس کو بھی دیکھ لیں یہ فارن سیکرٹری لیول پہ ہے. تھوڑی سی جو ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہے جہاں مذاکرات ہوتے ہیں یا بات چیت ہوتے ہیں یا انٹریکشن جو ہے وہ اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو دا فارن سیکرٹری لیول فی الحال. تو لیکن وہی بات آتی ہے کہ جو ہے کوئی یہ امید کرنا کہ جو ہے اس سے کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا خرابی ہے تو وہ تو نہیں ہے. یہ ایک جو پروسیس اور یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے, یہ بھی نہیں. ہم نے درمیان میں رہنا سیکھ لیا ہے پاک امریکہ تعلقات میں کہ نہ ہی تو بہت ہی اس طرف دو ایکسٹریم اینڈ کو ہم ایوائڈ کر رہے ہیں کہ بیچ میں رہ کے نا اس طرح کے بین الاقوامی تعلقات میں یہی چیز ہوتی ہے. ہاں بٹ پریشر بہت ہے ابھی, مطلب کہ درمیان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مے بی وی ناٹ ویئر وی ور ان 2010. اوہ یس, ناٹ ایٹ آل. اس طرح کی حالت نہیں ہے مگر جو پریشر ہے وہ نظر آنے والا پریشر ہے. ہم پہ پریشر تو ویزیبل ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے, لیکن امریکہ پریشر ہوتا ہے وہ سم ٹائم انویزیبل ہوتا ہے. امریکہ پہ کون سا پریشر ہے؟ ہمارے تعلقات کے حوالے سے میں نے کہا نا انویزیبل ہوتا ہے. کچھ معاملوں میں یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ معاملوں میں وہ کہیں گے کہ یہ تو واک اوور ہے کسی معاملے. لیکن ایک اور دیکھیں ایک بنیادی چیزیں ہیں جس کو یہ اسی طرح سے جو ڈائلاگ ہے یا اس کو کہہ سکتے ہیں ملاقاتوں کے ذریعے اس کو جو ہے کم سے کم ضرور کیا جا سکتا ہے. جیسے مسئلہ یہ کہ FATF کا مسئلہ تھا, یہ آج کل جو ہے بنیادی ایک امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو نئی ایک وہ بن کے آئی ہے اس میں FATF میں جو ہمیں گرے لسٹ پہ کیا ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے اس مذاکرات کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لحاظ سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے کہ کیا پاکستان کر سکتا ہے اور کیا جو ہے ممکن ہے اور کیا چیز جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشن بھی کیا بن کے آتی ہے. تو اس حد تک ہے, اس حد تک ہے. ہم ویسے یہاں بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں ظاہر صاحب؟ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. پھر اجازت لیتے ہیں نا, اگر مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو بھی اجازت لے لیں. پھر جتنا ہمیں وقت الاٹڈ تھا وہ ختم ہو گیا. ظاہر صاحب آپ کا شکریہ, عارفہ آپ کا شکریہ. کل تک کے لیے عبدالستار خان کو بھی اجازت دیجیے, عارفہ نور کو بھی اجازت دیجیے اور زاہد حسین صاحب کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.